ये देखो इसमें मैं 1 मिनट रुको, आप ये इस वेरीफाई भी कर लो। 898 सही है। ठीक है सर, मैं वेट कर रहा हूँ। हाँ ओके। हाँ आ गया, बच्चा आ गया। हाँ ओके ओके ओके, ठीक है सर, ठीक है सर, ओके बाय। Yes, Harshal, is my voice audible? Yes, sir, you are audible. Okay. So, चलो आज नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं चैप्टर। So, today's chapter is differential equation. हाँ, स्क्रीन विजिबल है? Yes, sir. ओके गुड। अभी आज बोर्ड पे भी पढ़ेंगे क्योंकि जूम में क्या, फिर मैं कल 2 लेक्चर है। सो अभी ये लेक्चर अपन आज डिफरेंशियल इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। सो लेट अस टेक differential equations. So क्वेश्चंस आपको फ्रेम होते हैं। फर्स्ट जो is order and degree calculation of differential equation. So it is let us take a question. It is differential equation is so it is divided by dx cube plus 4 times of square root of dy by dx whole cube plus y square equal to 0. Wait, let me see if there is option of screen sharing in this. Okay. So let us start. Okay. अभी स्क्रीन शेयरिंग का उसमें ऑप्शन नहीं आ रहा, मैं एक बार कल कंफर्म कर लूंगा। सो डिफरेंशियल इक्वेशन, सो इक्वेशन इज क्वेश्चन 1, सो इक्वेशन इज d3y अपॉन dx क्यूब प्लस 4 times of square root dy by dx whole cube प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0। सो ये डिफरेंशियल इक्वेशन का डिग्री कैलकुलेट करना है एंड ऑर्डर कैलकुलेट करना है। सो सबसे पहले ऑलवेज ट्राई टू रिमूव द रेडिकल साइंस। सो इट इज d3y अपॉन dx क्यूब इज इक्वल टू -4 स्क्वायर रूट ऑफ dy by dx whole cube plus y square and take square of both sides. So always first remove radical signs. So remove radical signs. So if you square both terms, then it will be d3y
upon dx cube whole square, and it is equal to minus 4 square is basically plus 16, and it is dy by dx. So I will take this bracket. So it is dy by dx whole cube plus y square, and in this manner this is the equation. अभी इक्वेशन में देखेंगे कि इसका ऑर्डर एंड डिग्री, तो ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करते हैं? द हाईएस्ट डिफरेंशियल इन द डिफरेंशियल इक्वेशन. So highest differential is order 3. So this is order 3. This one, d3y upon dx cube. So it is order 3. So order is 3. So highest differential. Highest differential in the equation. And what is degree? Degree is a power of highest differential. So how highest differential is this differential d3y upon dx cube. So power of it is 2. So degree is 2. So degree is 2. So why? Because power of highest differential is 2. So that's, in this manner we'll see how to calculate the degree and order of differential equation. क्वेश्चन मैंने इसीलिए लिया कि जिससे आपको ये आइडिया हो कि रेडिकल वाले साइन भी अगर हो तो कैसे चेंज करना है. तो रेडिकल साइन कोई नहीं होना चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन में, उसको पहले कन्वर्ट करो एंड आफ्टर दैट फिर उसमें रेडिकल साइन के बाद उसमें हाईएस्ट डिफरेंशियल देखो. जो हाईएस्ट डिफरेंशियल होगा वो ऑर्डर होगा, और जो हाईएस्ट डिफरेंशियल की पावर है वो डिग्री होगा. तो इस तरीके से आपको देखना है. चलो अभी ये क्वेश्चन हो गया है, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं. सो नेक्स्ट इज ठीक है, न्यू व्हाइट बोर्ड इसमें. सो यस, सो नेक्स्ट इज how to solve a differential equation in elementary form. So let us see next question. So this is question number 2. So in this, solve the differential equation. This is the question. Solve the differential equation dy by dx equal to x square y. तो अभी बिल्कुल बेसिक क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं डिफरेंशियल इक्वेशन के. सो सबसे पहले डिफरेंशियल इक्वेशन अगर हमको देख के और विल ट्राई टू सेपरेट द वेरिएबल्स. तो अगर आपके x वाले वेरिएबल्स एक तरफ हो रहे हो y वाले, तो दैट इज द इजीएस्ट केस. सो अभी it is actually variable separable. So it is variable separable form. So यहाँ पे कितना हो जाएगा? dy by y is equal to x square dx. So यहाँ पे इसको इंटीग्रेट करो दोनों साइड. So dy by y का इंटीग्रेशन होता है log y to the base e, that is equal to x cube divided by 3 plus c1, because we does have a constant of integration, it is indefinite integration. Now it can be written as y is equal to e2 power x cube by 3 plus c1. So y is equal to e2 power, so it is e2 power x cube by 3 multiplied by e2 power c1. So e2 power c1 is other constant, which is simply c. So the differential equation becomes c e2 power x cube by 3. So y is equal to c e2 power x cube by 3, और इसमें ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा. आपको ऑप्शंस दिए हुए थे कि यहाँ पे ए बी सी डी करके 4 ऑप्शन, तो उसमें से ये एक ऑप्शन है. तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट डिफरेंशियल इक्वेशन. अगर इसमें कुछ इनिशियल कंडीशंस गिवन होंगी तो उस केस में क्या होगा? जैसे सपोज हमको इनिशियल कंडीशन गिवन है, इनिशियल कंडीशन है
x इक्वल टू 0 पे y का वैल्यू कितना है 1, तो उससे आप ये कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। तो अगर वो कांस्टेंट की वैल्यू भी कैलकुलेट कराना चाहते हैं क्वेश्चन में, कोई ना कोई कंडीशन आपको गिवन होगी। तो इस केस में आपका इसमें x इक्वल टू 0 पुट करो, y इक्वल टू 1 है तो y की वैल्यू तो 1, और x इक्वल टू 0 तो c इंटू ई टू पावर 0 क्यूब बाई 3 विच इज नथिंग बट 0. So you will get c equal to 1. So what is the equation? Y equal to e to power x cube by 3. So this is the equation or answer if this is the initial condition. For example मैंने इसमें लिया, इस क्वेश्चन का आंसर तो यही है क्योंकि इसमें c आ गया कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, तो वो कैलकुलेशन के लिए आपको कोई ना कोई जो होगा वो हिंट क्वेश्चन में जरूर गिवन होगा। तो इस तरीके से आपको करना है क्वेश्चन अटेम्प्ट। अभी नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस है, देखो वेरिएबल सेपरेबल तो आपको सेपरेट करते ही समझ आ जाएगा। जैसे यहाँ पे ये पूरा y का फंक्शन हो गया था और इधर ये पूरा x का फंक्शन हो गया था, तो इसमें आपको प्रॉब्लम आएगी नहीं क्योंकि यहाँ पे आपका आराम से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अभी देखो, अभी इसमें अभी देखो नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन नेक्स्ट इज, हेलो सर। यस सर इधर क्वेश्चन नहीं समझ रहा है, मतलब क्वेश्चन क्या है क्या एक्चुअली? एक्चुअली क्वेश्चन क्वेश्चन ये क्या है? देखो, ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का क्वेश्चन है। जैसे मैं तुम्हें एग्जांपल जो बता रहा हूँ, फर्स्ट मैंने क्वेश्चन बताया, कौन सा क्वेश्चन था कि उसमें ऑर्डर ऑर्डर फाइंड करने हाँ का। ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करनी। तो ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करने वाले में अपना था कि उसमें अपने को उसका रेडिकल साइन जो होता है 1/2 वाले जो साइन होते हैं या 3/2 पावर हो, तो रेडिकल साइन कोई भी उसको रिमूव करना होता है। और फिर मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि मेरी बीच में वॉइस नहीं आ रही क्या? वॉइस क्लियर आ रही है? वॉइस वॉइस इज क्लियर सर। ओके। एंड सेकंड क्वेश्चन था, अगर हम वेरिएबल्स को सेपरेट कर दें तो वेरिएबल को सेपरेट करने वाला जो डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसको कैसे सॉल्व करते हैं, उसके बारे में था। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सी next differential equation, next type of differential equation is this. Let us say they have given a differential equation, solve the differential equation, this is the question. अभी आज थोड़ा सा हो सकता है इनकन्वीनियंस क्योंकि मेरे को स्क्रीन शेयरिंग इसमें नहीं हो रहा है, तो वो एक बार मैं सर से बात कर लूंगा। सो इट इज dy by dx प्लस y by x, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, इक्वल टू x, और इसमें कंडीशंस क्या दिया हुआ है, कंडीशन इज y ऑफ 1 इक्वल टू 1। तो पहले मुझे बताओ ये क्वेश्चन क्लियर हुआ आपको? ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है और ये कंडीशन गिवन है। मतलब कांस्टेंट की वैल्यू फाइंड करनी है क्या? ना कांस्टेंट की वैल्यू नहीं, ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है दिस वन, एक मिनट, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है ये वाला, ये एक मिनट, ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को जिसको मैंने सर्कल किया है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का मीनिंग क्या होता है, एक्स और वाई में यू हैव टू ऑब्टेन इक्वेशन। सो ऑब्टेन व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, सो यू जस्ट हैव टू मेक ए फंक्शन। डिफरेंशियल इक्वेशन का मीनिंग पता है आपको सॉल्व करने का क्या होता है? आपको डेरिवेटिव्स में एक इक्वेशन गिवन होगी और उसको सॉल्व करना है और उससे एक्स और वाई में रिलेशन कैलकुलेट करना है। ये समझ आ रहा है? यस सर। अभी क्लियर आ रहा है कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं। तो जैसे अभी जो मैंने क्वेश्चन करवाया था, तो अभी वो आपने नोट डाउन किया, जो अभी वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन करवाया था? क्या सर? अभी जो वेरिएबल सेपरेबल वाला क्वेश्चन करवाया था वो डाउनलोड किया, मतलब वो लिखा तुमने, नोट डाउन किया? नहीं सर, नहीं किया। अच्छा, तो अभी मैं करवाऊंगा ना तो उसको आप कर लेना अभी नोट डाउन, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। अभी मैं धीरे धीरे लिखूंगा तो ठीक है उससे सर। आपको दिक्कत नहीं होगा। हाँ, हाँ। तो अभी जैसे देखो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसके अलावा
अगर हम बात करें इसमें, मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ आपको, जिससे आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का आइडिया हो जाए। तो यहाँ पे मैंने लिया इसको, क्वेश्चन 3 में ही मैं एक दूसरा डिफरेंशियल इक्वेशन ले रहा हूँ, तो थोड़ा इजी है। सबसे पहले वो आपको समझ आ जाएगा। तो आपको क्वेश्चन है, द सॉल्यूशन ऑफ dy by dx is equal to minus x upon y at x equal to 1 and y equal to under root 3 is। अभी लास्ट क्लास में क्यों नहीं आया आप? सर था मैं लास्ट क्लास में। या तो थर्सडे को नहीं आए थे एक दिन? मैं सर एवरी लेक्चर को था, जो मैसेज आया उस मतलब एवरी लेक्चर को मैं ज्वाइन हुआ था, जो जो ग्रुप पे मैसेज आया उसमें। अच्छा 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 अच्छा, क्योंकि मुझे मतलब एक लास्ट एक क्लास, लेक्चर हुआ क्या? नहीं फ्राइडे को हुआ था, सैटरडे को नहीं हुआ। फिर अभी आज है तुम्हारा एक लेक्चर, और फिर उसके बाद एक लेक्चर और बचेगा बस। सर कैलकुलस तो के या बाद तो आपने कुछ सिखाया क्या मतलब? कैलकुलस नहीं, कैलकुलस हो गया था, कैलकुलस हो गया था, लीनियर अलजेब्रा हो गया था, और एक और हो गया था अपना। हाँ, अब अपना बस ये डिफरेंशियल इक्वेशन है, और आगे 2 चैप्टर है, तो उसके बारे में मैं कुछ नोट्स दे दूंगा अगर टाइम कम रहेगा तो देखो, अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई। और उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए ये गिवन भी है, एट x इक्वल टू 1 पे डिफरेंशियल इक्वेशन की वैल्यू y इक्वल टू 3 है, जो भी x और y में रिलेशन आएगा। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हाउ वी सॉल्व इट, सी द सॉल्यूशन। इट इज dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन वाई, ये डिफरेंशियल इक्वेशन है। अभी इसमें तुम्हें x और y के बीच का रिलेशन कैलकुलेट करना है, और आपको कंडीशन दिया है कि ये x इक्वल टू 1 पे y इक्वल टू रूट 3 होता है। तो ये आपको दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें y और dy इन दोनों को एक साथ कर लो, और x और dx इन दोनों को एक साथ कर लो। तो यहाँ पे y dy क्या हो जाएगा, तो इसमें आपका इंटीग्रेशन ऑफ y dy, क्योंकि अभी हमें क्या करना है, जितने भी डिफरेंशियल साइन है उसको रिमूव करना है। ये समझ आ रहा है आपको? आर्शल, समझ आ रहा है? यस सर। अभी अच्छा चलो ठीक है, इसको नोट डाउन भी कर लेना। तो अभी देखो, सो वाई डी वाई, इसका इंटीग्रेशन कितना होगा, वाई स्क्वायर बाई टू, दैट इज इक्वल टू एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। एंड बिकॉज इट इज इंडेफिनेट इंटीग्रेशन, सो वी हैव ए कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। क्योंकि इंडेफिनेट इंटीग्रेशन में आपका सी आता है कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और डेफिनेट में नहीं आता है, क्योंकि उसमें लिमिट्स होती हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, तो उससे वो जो कांस्टेंट होता है वो कंपनसेट हो जाता है। सो सी, इट इज वाई स्क्वायर बाय टू इज इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू प्लस सी। तो अभी देखो, तो इसमें ये कितना हो जाएगा, अभी इसको वैल्यू अभी हमको नहीं पता है कि सी का वैल्यू कितना है, तो सी का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, उसके लिए अपने को कंडीशन गिवन है ये वाला, एक्स इक्वल टू 1 पे वाई रूट 3 है। तो y का वैल्यू रूट 3 पुट करो, तो इधर आ जाएगा रूट 3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2, एंड दैट इज इक्वल टू, और x की जगह क्या पुट करना है, 1 पुट करना है। सो 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एंड प्लस c। सो इट इज 3 बाय 2 इक्वल टू माइनस 1 बाय 4। तो ये वैल्यू आया माइनस 1 बाय 2, तो ये 4 नहीं आएगा नीचे, माइनस 1 बाय 2 प्लस सी। तो इधर से सी का वैल्यू कितना आया, यहाँ से सी का वैल्यू आया, c इज इक्वल टू 2, बिकॉज ये माइनस 1 बाय 2 उधर जाके प्लस 1 बाय 2 हो जाएगा। तो ये c की वैल्यू 2 हो गई, ठीक है हो गई। अब ये जो c की वैल्यू 2 आया है वो इसमें पुट करो इक्वेशन में, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये मैं पेन का कलर चेंज करके लिख रहा हूँ जिससे तुमको समझ आ जाए। और यहाँ पे ये हो जाएगा वाई स्क्वायर बाय टू इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाय टू। अब देखो सब पूरा इक्वेशन एक्स वाई और यहाँ पे सी सम कांस्टेंट इसकी फॉर्म में आ गया है टू। अभी यहाँ से इसको कैसे सॉल्व करेंगे,
तो इसमें 2 एलसीएम ले लो या 2 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, तो वाई स्क्वायर बाई 2 इंटू टू इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 इंटू टू प्लस 2 इंटू टू इज 4. So it is x square plus y square equal to 4. It is the answer of this differential equation or solution of this differential equation. तो अभी क्लियर हुआ आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं? यस सर, हुआ। चलो अभी इसको नोट डाउन कर लो. हाँ सर, करो। हम्म. डन सर। ओके बेटा, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन एक और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. The type of no the solution of, so the solution of differential equation, the solution of differential equation हेलो dy सर। by dx. सर Yes. सर, फ्राइडे को लेक्चर नहीं हुआ था। फ्राइडे को नहीं, मैं तो आया था, पर आपके बैच में से कोई नहीं आया था, मैंने तो वेट किया था 30 मिनट्स. सर मतलब ग्रुप में मैसेज ही नहीं आया है। नहीं, मैं तो बैठा था, तो सर ने मुझे तो बोला था कि हाफ एन आवर आप वेट करो, अगर कोई नहीं आएगा तो फिर आप लीव कर देना, नहीं से फ्राइडे को और भी क्वेश्चंस हो जाते काफी सारे. अभी सर मुझे लेकिन क्वेश्चन थोड़े कम कम करने पड़ेंगे. ग्रुप में लिंक ही नहीं भेजी थी सर ने, तो कैसे मालूम पड़ता। अच्छा, हो सकता है कुछ हो गया और टेक्निकल इशू कुछ हो, क्योंकि मैंने तो वेट किया था. आपका मंडे मतलब टू सर ने फ्राइडे कोई प्लान था? रिमाइंडर भी नहीं दिया और उधर मैसेज भी नहीं डाला है। अच्छा, आप ये प्लान था आपका कि मंडे टू फ्राइडे 5 लेक्चर्स होंगे और फिर आपका जो लास्ट लेक्चर है वो मंडे को होगा. आज मतलब मेरा लास्ट लेक्चर होता, और टुडेज लास्ट लेक्चर मतलब। होता, बट शायद अभी एक स्पेयर लेक्चर और करेंगे, तो उसमें अपना जितना मुझसे हो सकता उतना कराऊंगा मैं, क्योंकि ओके सर। हो जाएगा वैसे ऑलमोस्ट, आपको पूरा आइडिया तो लग जाएगा. अभी आप थर्ड ईयर में हो ना? हाँ हाँ ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको पूरा आइडिया लग जाएगा मैथ्स में कैसे कैसे गेट में क्वेश्चन डील करना है. सो ओके देखो, सर। द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy by dx plus y square equal to 0 is. So what is the solution of this differential equation? Again, we separate, we'll write it like this: dy by dx is equal to minus y square. So it will be dy by y square with a negative sign equal to dx. अभी बस इसको सॉल्व करना है. सो दोनों तरफ इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, और इट इज माइनस डी वाई अपॉन वाई स्क्वायर. इसका इंटीग्रेशन कितना होता है? 1 अपॉन वाई. सो दैट इज इक्वल टू, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स? इट इज एक्स. और अभी क्या आ गया? एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट, बिकॉज इट इज इनडेफिनेट इंटीग्रेशन. सो दैट्स व्हाई वी हैव वन इंटीग्रेशन साइन. सो ये हो गया 1 अपॉन वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, और वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस सी. तो दिस इज द सॉल्यूशन और आंसर. अभी क्लियर हुआ है? यस सर, मतलब इसमें पूरा इक्वेशन में y की वैल्यू फाइंड की है। हाँ, जो भी आपको जैसे डिफरेंशिएशन में इक्वेशन गिवन होता है, तो जो डिफरेंशिएशन में जो इक्वेशन होता है उसको हमें x और y के बीच में रिलेशन कैलकुलेट करना होता है, उसको सॉल्व करके बाय मेथड ऑफ इंटीग्रेशन और मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन इफ रिक्वायर्ड. पर इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन की रिक्वायर नहीं होती है, वो इंटीग्रेशन की रिक्वायर होती है डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए. तो उससे हमें x और y में एक रिलेशन ऑब्टेन करना होता है. ये तुम्हें मैथ्स में पढ़ाया नहीं क्या? सर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा है। पढ़ा है ना? हाँ, तो इसीलिए वो वही वाला टॉपिक है, डिफरेंशियल इक्वेशन. चलो नोट डाउन कर लो इसको.
हो गया, नोट डाउन हो गया? हाँ सर हुआ। चलो फिर मैं क्लियर कर रहा हूँ। नेक्स्ट है नेक्स्ट टाइप। अभी ये तो सब वेरिएबल सेपरेबल वाली फॉर्म था। हाँ सर। अभी नेक्स्ट है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सर तो एक्सक्यूज सर। हाँ सर इसकी नोट्स मिलेगी क्या? मतलब अब हमने उधर गूगल मीट में तो उधर आप सॉल्यूशन लिखते थे, हाँ, इसका ये नोट्स मेरे पास नोट्स है ना इसके भी। पर है ना? एक्चुअली चक्कर ये हो रहा है कि अभी मेरे को ये स्क्रीन शेयरिंग में, देखो इसमें क्या हो रहा है, मेरे पास स्क्रीन शेयर का ऑप्शन नहीं आ रहा अभी। तो वो मैं तुम्हें पीडीएफ तो सेंड करूंगा ही। सर मीट पे क्यों ना किया फिर? वो उसमें कुछ रिकॉर्डिंग का इश्यू हो रहा था, मुझे सर ने जैसे बोला फिर मैंने वैसे ही किया। मुझे लगा कि इसमें जूम पे वो स्क्रीन शेयर का ऑप्शन ऑप्शन आ रहा होगा, तो इसमें अभी मेरे को दिख नहीं रहा है। तो अभी तो व्हाइट बोर्ड पे पढ़ लो तुम, 7:30 7:45 आज जल्दी क्लास कर लेंगे। और फिर उसके बाद फिर कल मैं या तो गूगल मीट पे कर लेंगे या फिर मेरे जो जूम की मेरी पर्सनल आईडी है उस पे कर लेंगे, क्योंकि उसमें स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन है। ठीक है ना? सर मीट पे भी रिकॉर्ड होता है मतलब? मीट पे यार रिकॉर्डिंग हमसे हो नहीं रही थी। और मतलब मेरे पास क्या है, वो कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, आईपैड में एक साथ नहीं होती। अभी मेरे पास वैसा वो नहीं है, पेन टैब नहीं है जो लैपटॉप से कनेक्ट होता है ना। तो हाँ हाँ। आईपैड में कुछ फीचर सपोर्ट करता है, कुछ नहीं करता है, ये इश्यू आ रहा ओके सर। है। देखो नेक्स्ट है क्वेश्चन। सो ऑन बेसिस ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। सो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन अभी अपन सॉल्व करेंगे। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का टाइप क्या होता है देखो। लेट अस से दिस इज द इक्वेशन e dx by dt plus x and that is equal to t. So with initial condition, so with initial condition उन्होंने दिया हुआ है x of 1 equal to 1/2। तो इसको तुम्हें सॉल्व करना है। तो सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन t dx by dt plus x equal to t with initial condition x of 1 equal to 1/2 and you have to solve this question or solve this differential equation। तो पहले बताओ क्वेश्चन क्लियर हुआ? हाँ सर। अभी देखो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में हमारे पास जैसे हमने अभी क्वेश्चन किया उसमें हमने वेरिएबल को सेपरेट कर दिया था, तो वो हमारे पास बड़ा इजीली सेपरेट हो रहे थे वेरिएबल्स। अभी इसमें अगर हम करें कि dx और x को एक साथ करें ट्राई, और t और इनको dt को एक साथ ट्राई करें, तो वो नहीं होगा। तो इसका मतलब ये वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व नहीं होगा। तो इसके लिए हम कोई दूसरी चीज यूज करेंगे। तो इसको बोलते हैं अपन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इसमें तुम ट्राई करके भी देख सकते हो कि एक्स एक्स वाला टर्म, एक्स और dx वाला टर्म एक तरफ नहीं होगा, और t और dt वाला टर्म एक तरफ नहीं होगा। तो इसलिए इसको हम वेरिएबल सेपरेबल, जो मैंने तुम्हें लास्ट दो क्वेश्चंस करवाए हैं उनके जैसे नहीं होगा। तो अभी क्या होगा, अभी इसमें इसको बोलते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसको सॉल्व करने का पर्टिकुलर एक मेथड होता है। कैसे? सबसे पहले इसको हम चेंज कर लेते हैं dx बाई dt प्लस x अपॉन टी। तो यहाँ पे आपका ये जो टी है, ये इसमें इसको हमने टी से डिवाइड किया पूरा इक्वेशन को, तो ये तो सिर्फ dx बाई dt हो जाएगा। ये x बाई टी और ये t बाई टी मतलब 1। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा dx बाई dt प्लस x बाई टी इज इक्वल टू 1। तो ये अपना इक्वेशन नंबर 1 ले लो अभी, फिर 2 बाद में लेंगे। इक्वेशन नंबर 1, तो सबसे पहले इसको हमने t से डिवाइड कर लिया। तो अभी ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होता है। इसमें क्या होता है कि आपको इसको सबसे पहले तो इसको देखना आना चाहिए कि हाँ ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसके बाद इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे
इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है, जो जैसे आपके पास कोई इक्वेशन है dx बाई डी टी प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू टाइप की कोई भी इक्वेशन है, तो यहाँ पे ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म होता है। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें पहले कंपेयर करके पी और क्यू की वैल्यू कैलकुलेट करो, तो कंपेयर करके पी का वैल्यू कितना आएगा बताओ। 1/t। तो पी का वैल्यू आएगा 1/t, गुड। और क्यू का वैल्यू 1। तो क्यू कुछ भी हो सकता है, कोई फंक्शन भी हो सकता है, कोई कांस्टेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो उससे पहले हम जनरल फॉर्म से कंपेयर करके पी और क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, फिर उसके बाद हम कैलकुलेट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए आपको ऐसे लिखा जाता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर एनी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इज ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी। तो यहाँ पे होता है इट इज ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी इज 1/t, तो यहाँ पे हो जाएगा डी टी बाई टी। तो ये हो जाएगा आपका ई टू पावर लॉग, क्योंकि इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी ये कितना होता है, इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी होता है लॉग टी। तो यहाँ पे हो जाएगा ई टू पावर लॉग टी टू द बेस ई। और यहाँ पे ई टू पावर और लॉग ई ये दोनों एक दूसरे को प्रॉपर्टी होती है, ई टू पावर लॉग ई और समथिंग कुछ भी क्वांटिटी हो तो दिस इज इक्वल टू टी। तो यहाँ पे ये ई टू पावर लॉग ई ये कैंसिल नलीफाई हो जाते हैं, टी विल बी द वैल्यू। सो ये हम सबसे पहले इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं इस मेथड से। तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने का मेथड है। और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद हम लिखते हैं सॉल्यूशन। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सॉल्यूशन इज x into integrating factor is equal to integration of q into integrating factor into dt and plus c। तो x into integrating factor equal to q into integrating factor into dt plus c। तो इस तरीके से हम उसके बाद इक्वेशन लिखते हैं। तो सबसे पहला टास्क क्या होता है अपना, इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करना। इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो हम जो डिफरेंशियल इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म या जनरल फॉर्म होता है उसको हम उसमें उसको कंपेयर करते हैं गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन से, और पी और क्यू का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये पी का वैल्यू है, ये क्यू का वैल्यू है। उसके बाद जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है दैट विल बी ई टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ पी डी टी, और पी का वैल्यू कितना है 1/t, तो ई टू पावर इंटीग्रेशन डी टी बाई टी। इन डी टी बाई टी इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बाई टी कितना होता है लॉग ई टी, तो ई टू पावर लॉग ई टी, तो ई टू पावर से लॉग ई कैंसिल होकर टी आ जाता है। तो वो जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया है उससे फिर सॉल्यूशन लिखते हैं अपन। तो ये थोड़ा मार्कर तो तुम्हें दिख रहा होगा ना स्क्रीन पे, छोटा सा पॉइंट है जो। ये सर दिख रहा है। हाँ, क्योंकि आज मुझे पता है तुम्हें इनकन्वीनियंस हो रहा होगा थोड़ा सा। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू डी टी प्लस सी। यहाँ तक पहले आप अपनी कॉपी सर में एक्स नोट। का वैल्यू क्या है? हाँ, एक्स क्या x तो पुट करें? x ही रहेगा, क्योंकि ये इक्वेशन dx बाई डी टी पी एक्स एक्स में जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, तो x तो यही वाला x रहेगा। इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो कैलकुलेट किया है वो d है, वो इधर t है सॉरी। तो यहाँ पे इंटीग्रेटिंग फैक्टर t रखोगे, और ये इंटीग्रेशन q की वैल्यू कितनी है, इधर q की वैल्यू 1 है, यहाँ पे 1 रखोगे। और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है t, फिर t रखोगे, फिर t के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करोगे, फिर प्लस c लिखोगे। अभी समझ आया? हाँ सर। तो अभी इसको पहले एक बार नोट डाउन कर लो, फिर अगले पेज पे चलते हैं। किया सर। डन, इसको मैं इरेज कर दूं? हाँ सर। चलो अब देखो, अब इसमें इसको मैं फिर भी सेव कर लेता हूँ। अच्छा, ये सेव भी नहीं कर रहा है। चलो अब आगे इसमें स्टार्ट करते हैं। यहाँ से मैं क्लियर कर रहा हूँ ये ड्राइंग। नेक्स्ट पेज पे देखो, अभी अपने पास इक्वेशन आ गया था कि हमारे पास जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर था उसका वैल्यू आया है t, और जो सॉल्यूशन लिखते हैं द सॉल्यूशन विल बी x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर
is equal to integration of q into integrating factor into dt plus c। तो ये इसमें ये आ जाएगा। अभी देखो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, तो अभी इंटीग्रेटिंग फैक्टर की वैल्यू t आई है इधर, ये x तो क्योंकि देखो x में तो इक्वेशन ही थी इसलिए x तो x ही रहेगा। तो x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज t, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q। तो q का वैल्यू कितना है, अभी हमने p की वैल्यू भी कैलकुलेट की थी, वो आई थी 1/t, और अभी q की वैल्यू भी उससे कंपेयर करके कैलकुलेट की थी, आपने लास्ट पेज पे लिखा हुआ है। तो x इंटू टी इक्वल टू क्यू, तो q का वैल्यू कितना है 1 इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है t और dt एंड प्लस c। तो यहाँ से कितना आ जाएगा x इंटू टी इक्वल टू, इट इज टी आंसर dt बताओ क्या? हाँ बेटा, आंसर बताओ। हाँ बताओ। x इज इक्वल टू x इज इक्वल टू, हाँ आगे बताओ। हेलो हेलो। हेलो। हाँ आवाज आ रही है। सर, सॉरी सर, नेटवर्क इशू था। हाँ क्या आंसर आ रहा है। x इज इक्वल टू हम्म, t/2 dt प्लस c/t t/2 dt। dt क्यों होगा, ये जब t dt का इंटीग्रेशन ही t स्क्वायर बाय 2 हो जाता है, तो फिर dt नहीं ये लेने क्यों का था आएगा। फिर? नहीं सॉरी dt सर, नहीं ओके लेते ना इंटीग्रेशन करते ओके हुए। ओके। तो फिर इट t विल बाई बी टू प्लस c/t x इज इक्वल टू t/2 बाई प्लस, c/t। बिल्कुल सही है। तो x इज इक्वल टू t/2 प्लस c/t। अभी देखो ये इसका आगे आंसर, बट इसने इनिशियल कंडीशन भी दिया हुआ है। इनिशियल कंडीशन उसने बोला है x of 1 equal to 1/2 means at t equal to 1। so at t equal to 1, so at t equal to 1 तो इधर t equal to 1 पुट करो, तो और x कितना है 1/2, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 1/2 इक्वल टू एंड t इक्वल टू 1, सो 1/2 प्लस c/1। सो अभी इधर से ये कैंसिल हो गया, तो c का वैल्यू कितना आया 0 आया। तो c का वैल्यू 0 आया, अब ये c का वैल्यू 0 इसमें पुट करेंगे। तो x इज इक्वल टू, क्योंकि इनिशियल कंडीशन गिवन था तो हमारे पास चांस है कि हम कांस्टेंट की वैल्यू कैलकुलेट कर सकें। तो x इज इक्वल टू t/2, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू t/2, ये इसका सोल्यूशन हो जाएगा। और अगर इनिशियल कंडीशन नहीं देता तो फिर यहीं पे यही सोल्यूशन हो जाता। समझ आ गया। तो इनिशियल कंडीशन में थोड़ा नहीं समझा मतलब। इनिशियल कंडीशन समझाऊं। हाँ, वो x1 और 1/2 हाँ देखो, ये आपको गिवन है x ऑफ 1 इक्वल टू 1/2, ये क्वेश्चन के शुरू में मैंने लिखाया था। तो मतलब इसका क्योंकि ये फंक्शन t का फंक्शन है, तो इसका मतलब t इक्वल टू 1 पे इसका वैल्यू कितना है 1/2। तो यहाँ पे इसका मतलब t की जगह इधर 1/2 इधर 1/2, और x का वैल्यू कितना आ रहा है वो, मतलब t की जगह 1 रखना है और x का वैल्यू 1/2। तो उससे क्या आ जाएगा 1/2 इक्वल टू 1/2 प्लस c/1। तो उधर से हमको हेल्प मिल जाएगा कि हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको इनिशियल कंडीशन गिवन नहीं होगा तो फिर यही सॉल्यूशन हो जाएगा x इक्वल टू t/2 प्लस c/t आपने जो बोला है। बट अगर वो कोई इनिशियल कंडीशन देके रखते हैं तो इसका मतलब होता है कि आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैलकुलेट करना रहेगा। और वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो अपन फिर जो वैल्यू दे रखा है कि x ऑफ 1 इक्वल टू t/2 गिवन है, तो वहां पे t इक्वल टू 1, आपको t इक्वल टू 1 पे x ऑफ 1 इक्वल टू 1/2 आपका आएगा। तो x का वैल्यू 1/2 है, तो x का वैल्यू 1/2 अपन ने कहाँ रखा है, x का वैल्यू 1/2 देखो इधर रखा। और किस पे है t इक्वल टू 1 पे, तो ये t की जगह 1 पुट किया और ये t की जगह 1 पुट किया। तो इधर x इक्वल टू 1/2 हो गया, ये 1/2 हो गया और ये c/1, तो उससे हमको हेल्प मिल गया कि हम c का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकें।
और फिर वो सी का जो वैल्यू आया वापस से जो इक्वेशन बना था इस इक्वेशन में रख दिया, जो अपनी ये वाली इक्वेशन बनी थी। तो उससे आपका सी का वैल्यू 0 रखते ही एक्स इक्वल टू t/2 जैसा रिलेशन आ जाएगा। क्लियर हुआ है? हाँ जी बेटा, आवाज आ रही है? हाँ सर। क्लियर हुआ? हाँ क्लियर हुआ सर। तो अभी आप इसको नोट डाउन कर लो, अगर समझ आ रहा है ना तो पूरा नोट डाउन कर लो। कर लिया सर। ठीक है, ओके। चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। तो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन भी मैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पे ही करा देता हूँ, जिससे आपको गुड अमाउंट में प्रैक्टिस हो जाए। सो इट इज क्वेश्चन नंबर 5 और 6 कितना है, 6 हो गए। सो सॉल्व dy by dx प्लस y by x इक्वल टू x। सो y ऑफ 1 इक्वल टू 1। ठीक है, सो dy by dx प्लस y by x इक्वल टू x, y ऑफ 1 इक्वल टू 1। मतलब ये तो आपको कंडीशंस गिवन है, इनिशियल कंडीशन। इससे तो क्या कैलकुलेट होता है, इससे आपका कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन अगर कोई होता है उसको अपन कैलकुलेट कर सकते हैं। एंड इट इज dy by dx प्लस y by x इक्वल टू x। तो अब इसमें देखो, इसमें ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको अपन सॉल्व करते हैं। पहले आपको क्वेश्चन क्लियर हुआ, बताओ? हाँ सर हुआ। सो dy by dx प्लस y by x इक्वल टू x आपको सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है क्योंकि इसमें वेरिएबल सेपरेट नहीं हो रहे हैं। और आपको इनिशियल कंडीशन भी गिवन है कि y1 इक्वल टू 1 है, मतलब x इक्वल टू 1 पे y की वैल्यू भी 1 आ रही है। तो अभी इसमें हो जाएगा, ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है और इसका फॉर्म क्या है, dy by dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q। तो dy by dx प्लस p ऑफ y इज इक्वल टू q। तो यहाँ पे इसको कंपेयर करो। तो अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो p का वैल्यू कितना सर आएगा, p का सर वैल्यू? हाँ p ऑफ x था ना, हाँ कंडीशन पहले d बाई dx बाई dt प्लस px इज इक्वल टू q। हाँ, वो अलग इक्वेशन था। उधर अलग क्या है। था देखो, उधर इक्वेशन था dx बाई डी टी प्लस एक्स बाई टी और इक्वल टू 1 था। तो वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमें कंपेयर किससे करना होता है, हमको dx बाई डी टी प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू, इससे कंपेयर करना होता है। ये होती है मास्टर इक्वेशन। ये कब होती है मास्टर इक्वेशन, जब आपका जो इक्वेशन है वो टी के रेस्पेक्ट में है और एक्स ऊपर वाले हैं। अभी यहाँ पे क्या है, इक्वेशन एक्स के रेस्पेक्ट में है। ठीक है, तो अगर इक्वेशन एक्स के रेस्पेक्ट में और ऊपर वाला वाई है, तो यहाँ पे अगर एक्स होता है तो यहाँ पे भी पी के साथ वही वेरिएबल आता है ना, एक्स। यहाँ पे आपका वही वेरिएबल आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से होगा आपका। समझ आ रहा है? हाँ जी बेटा। हाँ यस सर। तो इसलिए यहाँ पे क्योंकि इक्वेशन आपके पास क्या है, इक्वेशन है आपका dx बाई डी टी प्लस पी एक्स इक्वल टू क्यू से कंपेयर किया है, क्योंकि यहाँ इक्वेशन t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएटेड है। और यहाँ पे इक्वेशन x के रेस्पेक्ट में, क्योंकि देखो नीचे x आ रहा है, नीचे x आ रहा है। तो इसको हमें कैसे लिखना पड़ेगा, dy बाई डी एक्स प्लस पी ऑफ y। तो p की वैल्यू इसमें अगर कंपैरिजन करोगे तो 1 बाय एक्स हो जाएगा। और एक मिनट में इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ पे, क्योंकि इधर थोड़ा स्पेस हो जाएगा। हाँ, तो b का वैल्यू 1 बाय एक्स हुआ, और q, और q से कंपेयर करो ये, तो q का वैल्यू कितना हुआ, x हुआ। तो p का वैल्यू 1 बाय एक्स और q का वैल्यू x। तो अभी इसका फिर इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैलकुलेट करते हैं। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ pdx, दैट इज इक्वल टू e टू पावर इंटीग्रेशन ऑफ
वन बाई एक्स, तो p का वैल्यू कितना है 1/x इंटू dx, तो ये कितना हो जाएगा e⁻ln x, क्योंकि 1/x dx का इंटीग्रेशन होता है तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपको इसी मेथड से कैलकुलेट करना है। e⁻इंटीग्रेशन ऑफ p dx, जो भी p होगा, अभी p 1/x है तो पावर में ही रहेगा वो e की, तो यहाँ पे 1/x dx इसका इंटीग्रेशन कितना होता है ln x, तो इसका इंटीग्रेशन ln x होता है, तो e⁻ln x, और ये मैंने आपको बोला था अभी कि e⁻ln e आपका एक तरीके से कंपनसेट हो जाते हैं, तो x ही आ जाएगा सिर्फ, तो ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर हुआ। और सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन होता है आपका इसमें, तो इसके अकॉर्डिंगली मुझे बताओ इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे, x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे या y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर लिखेंगे? y। हाँ, गुड। सो y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इंटू dx, क्योंकि जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो x के फॉर्म में ही रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट हो रही है, तो जो x जिस वेरिएबल के रेस्पेक्ट में वो डिफरेंशिएट है उसी वेरिएबल के रेस्पेक्ट में उसको इंटीग्रेट करेंगे, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। एंड प्लस c, वो तो क्योंकि इंडेफिनिट इंटीग्रेशन कर रहे हैं तो c तो आएगा ही, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। अभी y तो इतना है और इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितना है x, तो y इंटू एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ q, सर तो आंसर q की बताओ वैल्यू फिर। कितनी, क्या बेटा? बताओ आंसर। हाँ बताओ कितना आएगा। y इज इक्वल टू हाँ, x/2 प्लस c/x। x/2 नहीं आएगा, x²/3। देखो q तो कितना है x, और इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कितना है x, और ये है dx, और ये है प्लस c, तो x इंटू एक्स कितना होता है x², तो यहाँ पे आपका ये कितना हो जाएगा x⁻², और ये आगे इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हो जाएगा x² इंटू dx एंड प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा y इंटू एक्स इक्वल टू x² dx का इंटीग्रेशन, अब इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या होता है x⁻n dx, तो x⁻n dx का इंटीग्रेशन क्या होता है x⁻n एक्स प्लस क्यूब 1 बाई अपॉन, थ्री एक्स क्यूब बाई थ्री हाँ तो अभी कितना आएगा x³ प्लस c, so what is the value of y, y is equal to x²/3 प्लस c/x। तो अभी देखो ये तो इंटीग्रेशन आ गया, मतलब अपना सॉल्यूशन आ गया, बट अगर इस सॉल्यूशन में आपको c कैलकुलेट करने के लिए कुछ दिया हुआ है जिसको हम इनिशियल कंडीशन बोलते हैं, तो अगर आपको वो इनिशियल कंडीशन गिवन है तो फिर आप इजीली आप c के लिए भी सॉल्व करने के लिए ट्राई कर सकते हो, तो अभी मुझे इसमें c का वैल्यू कैलकुलेट करके बताओ। 2 सर 2। तो c का वैल्यू नहीं 2 नहीं आएगा, सर x इज इक्वल टू 1 पुट करना ना। x=1 पुट करना है और y=1 पुट करना है, क्योंकि y की वैल्यू भी 1 है ना, ये इधर वाली y की वैल्यू है, और अंदर x=1 पुट करना है, तो अभी इसमें करो, पुट करो, तो ये कितना आएगा यहाँ से 2/3। आ, 2/3। हाँ c का वैल्यू 2/3 आएगा, सही, एकदम सही है। सो ये c का वैल्यू 2/3 आएगा, फिर वापस से इसको यहाँ रख दो, तो यहाँ पे अगर रखोगे तो 2/3x हो जाएगा ये, 2/3x, तो y=x²/3 प्लस 2/3x, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा, ये वाला इसका फाइनल आंसर आ जाएगा y=x²/3 प्लस 2/3x। अभी कैलकुलेट करना आया c का वैल्यू, सर चलो ठीक है। सर मैं लिख लूं क्या ऐसे, इतना। हाँ आप आराम से लिखो उसको। एक मिनट मैं म्यूट कर रहा हूँ, वो पानी पी रहा हूँ।
हुआ सर लिख के। हेलो सर। बोलते तुम्हाला हेलो, एक्सक्यूज मी सर। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ सर। हाँ, अभी वो म्यूट किया था मैंने 2 मिनट के लिए। हाँ, लिख लिया। हाँ सर। चलो, अभी देखो। अब इसमें मैं तुमको एक क्वेश्चन देता हूँ। सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन d2y by dx square plus dy by dx minus 6y इक्वल टू 0। तो अभी ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है आपको, तो इसको नोटबुक में लिखो। हेलो सर, हाँ ये हाँ, लास्ट वाला डी है क्या? माइनस -6y। 6y। सर, इसका क्या करना है मतलब? इसको ऐसे हेलो ही सर। जैसे ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाना है। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मतलब इसमें ये वाला डिफरेंशियल इक्वेशन देखो, ना तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना वेरिएबल सेपरेबल है। नहीं। तो अभी कैसे करेंगे? तो देखो, इस टाइप का जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन होता है उसमें आपका जितना यहाँ पे ऑर्डर है, जैसे यहाँ पे d2 है ऊपर, तो उधर आप ये डी स्क्वायर लगाओ। सो डी स्क्वायर वाई प्लस इधर आपका डी बाई डी एक्स वन टाइम डिफरेंशिएबल है, तो डी स्क्वायर वाई प्लस डी वाई माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका डी स्क्वायर प्लस डी और -6 × y इक्वल टू 0। तो ये इसको बोलते हैं डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने के। देखो, ये तीसरे टाइप की अगर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, ना तो वो वेरिएबल सेपरेबल हो रहा हो इजीली, और ना उसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर वाले से हो रहा हो, ना तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हो, तो फिर कैसे सॉल्व करेंगे? फिर अपन सॉल्व करेंगे y को कॉमन, मतलब इसमें जो भी जितने भी ऑर्डर का डिफरेंशिएशन होता है, जैसे यहाँ पे आपका ये 2 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, इधर 1 ऑर्डर का डिफरेंशिएशन है, इधर कोई डिफरेंशिएशन नहीं है, सिर्फ एक कांस्टेंट है। तो उसमें क्या करते हैं हम, ये डबल ऑर्डर डिफरेंशियल होता है तो इधर डी स्क्वायर लिख देते हैं, सिंगल ऑर्डर डिफरेंशियल होता है तो डी लिख देते हैं, और कोई कुछ नहीं होता तो एज इट इज लिख देते हैं, फिर उसमें y कॉमन ले लेते हैं। तो अभी देखो, जब ये सब इक्वल टू 0 है तो इसका मतलब ये भी इक्वल टू 0 होगा। सो इट इज डी स्क्वायर प्लस डी माइनस 6 इक्वल टू 0। तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बताओ क्या बोलते हैं जब आपने पढ़ा है डिफरेंशियल इक्वेशन? सर, ध्यान नहीं, मतलब नहीं पता सर। मेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। दिस प्रोसेस इज नोन एज मेकिंग ऑक्सिलरी इक्वेशन। सो इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। इसको, इस प्रोसेस को बोलते हैं मेकिंग ऑक्सिलरी, एंड इट इज नोन एज ऑक्सिलरी इक्वेशन। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ AE। तो इट इज ऑक्सिलरी इक्वेशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। अभी जो ऑक्सिलरी इक्वेशन आई है इसको इक्वल टू 0 करके और सॉल्व करो। तो इसको फैक्टराइज करेंगे, सो इट विल बी d+3 इंटू d-2, सो दैट इज इक्वल टू 0। तो अभी इसमें व्हाट कुड बी द वैल्यूज ऑफ d?
डी इज इक्वल टू -3 और डी इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे डी इज इक्वल टू -3 और डी इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो अभी इसका सोल्यूशन कितना आएगा? अब देखो, अभी इसमें जब आपको अगर जो आपने ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाई है तो इसमें कुछ कंडीशंस होती हैं कि अगर ऑक्सिलरी इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो रियल हों, जैसे यहाँ पे दोनों रूट्स आपके रियल हैं, तो ऑक्सिलरी इक्वेशन तो डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है y इज इक्वल टू c1 e टू पावर फर्स्ट रूट -3 into x. So c1 e to power -3x plus c2 e to power प्लस 2x, क्योंकि सेकंड जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट आया वो 2 आया और फर्स्ट जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का रूट आया वो -3 आया। सो दैट्स व्हाई हम उसको क्या करेंगे, c1 e to power -3x प्लस c2 e to power 2x। अगर आपके रियल रूट्स आए हैं और दोनों रियल रूट्स डिफरेंट है, और अगर आपके दोनों रियल रूट्स अगर सेम है, तो अब इसमें तुम्हें कंडीशंस सब याद करनी पड़ेंगी। जैसे अगर आपके कोई भी इक्वेशन के रूट आते हैं डी इज इक्वल टू आपका एक 2 आ गया और फिर से एक 2 आ गया, तो दोनों सेम रूट आ गए। तो अगर सेम रूट आ रहा है तो इसका मतलब उसको कैसे लिखेंगे, y इज इक्वल टू c1 प्लस c2x इंटू ई टू पावर 2x। तो इस तरीके से आपको ये सब केस याद करने पड़ेंगे। ये तो होता है रियल एंड डिफरेंट रूट्स के लिए। और d इक्वल टू 2,2 क्या होता है, रियल और सेम रूट के लिए। आपका ये है रियल एंड सेम रूट, तो उसके लिए कंडीशन है रियल एंड सेम रूट के लिए c1 प्लस c2x ई टू पावर 2x। और ये होता है अगर आपका रियल और डिफरेंट रूट्स आए। तो इनको आप नोटबुक में लिखो पहले। ये एक्चुअली इसका ये तो आंसर हो जाएगा। मैंने आपको एक केस बताया सिर्फ यहाँ पे हाईलाइट करके कि अगर आपका सेम रूट्स आते हैं तो आपका इस तरीके से सॉल्यूशन होगा c1 प्लस c2x ई टू पावर 2x। अभी इस क्वेश्चन का आंसर तो यह है क्योंकि रियल और डिफरेंट रूट्स हैं। इसको लिखो। हाँ हर्षल, लिख लो इसको। लिख रहा हूँ सर। बस थोड़ी देर और, फिर अभी मैं तुम्हारे पास नोट्स सेंड कर दूंगा सारे, मेल कर दूंगा। और मैं कल के भी मेल कर दूंगा, एक बार उनको भी पढ़ लेना। तो हो सकता है कल भी दिक्कत हो क्लास में, कल या परसों जब भी होगा। सर मैथ्स के लिए कौन से बुक मतलब गेट के लिए पढ़ूं? मैथ्स के लिए तुम अच्छी बुक तो है आपका, अमेजोन फ्लिपकार्ट पे मिल जाएगी, मेड इजी पब्लिकेशन का है। कौन सा? मेड इजी, MEDEEASY, मेड इजी मैं उसमें कौन सा पब्लिकेशन पढ़ूं? का। कौन सा बुक पढ़ूं उसमें? मेड इजी पब्लिकेशन की आती है वो, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स नाम से। हाँ क्या? उसमें इंजीनियरिंग सब कवर हो जाता है मैथमेटिक्स। क्या? हाँ, उसमें सब कवर हो जाता है क्या? सब कवर, मैथमेटिक्स एवरीथिंग, एवरीथिंग अबाउट मैथमेटिक्स लेंदी क्या फॉर ज्यादा गेट। मतलब? कितना बुक लेंदी? उसमें हाँ? एक्चुअली क्या है, वो इसलिए ज्यादा थिक है, 400-500 पेज के अराउंड होगी वो। पर उसमें सभी ब्रांचेस के क्वेश्चन है, तो तुम्हें इलेक्ट्रिकल का भी मिलेगा, सिविल का भी मिलेगा, मैकेनिकल का भी, सब ब्रांचेस के क्वेश्चंस मिलेंगे उसमें। स्पेसिफिक ब्रांच का नहीं मिलेगा मतलब? स्पेसिफिक ब्रांच का नहीं, बट आपको मैथ्स में अगर मार्क्स अच्छे लाने हैं तो सभी ब्रांचेस के क्वेश्चन आप करो। उसमें आपको 60% 70% क्वेश्चन तो कॉमन ही मिल जाएंगे। मतलब वही इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच में आया होगा, वही इलेक्ट्रिकल में आया होगा, वही इंस्ट्रूमेंटेशन में आया होगा, ऐसे सब ब्रांचेस में सेम ही क्वेश्चन आते हैं। तो अपनी जो ये ईटीसी इलेक्ट्रिकल और इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांचेस होती हैं, इनमें सब में एक जैसे ही क्वेश्चन आते हैं मैथ्स के। 15 में से 13-14 मार्क्स की मैथ सेम होती है। मैकेनिकल का थोड़ा सा इक्का दुक्का क्वेश्चन डिफर करते हैं, और कंप्यूटर साइंस में आपके डिस्क्रीट मैथ्स भी आ जाती है, तो उसके क्वेश्चन वो इंक्लूड कर देते हैं। तो इसलिए इक्का दुक्का क्वेश्चन सीएस ब्रांच के डिफरेंट हो सकते हैं, बाकी आपको सेम क्वेश्चन ही मिलेंगे, सिविल में भी, इलेक्ट्रिकल में भी, मैकेनिकल, सब ब्रांचेस के। हो गया सर, लिख के हो गया। देखो अब, हाँ ठीक है।
अभी सर देखो अब। सर हाँ। हम्म। हमारा नेक्स्ट सेम ऑफलाइन होगा क्या? ये मुझे नहीं पता, ये आप वहीं पे फोन करके पूछ लेना ऑफिस में ही। क्योंकि मतलब मैं हॉस्टेलर हूँ ना, इसलिए। अच्छा, आपको ऑफलाइन करना है? नहीं मतलब मैं हॉस्टल, मतलब मैं मुंबई से नहीं हूँ ना प्रॉपर। अच्छा 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 अच्छा। हाँ, आप अनीश सर से बात कर लेना एक बार, वो आपको बता देंगे। चलो, अभी देखो। अब इसमें देखो, ये दो वैल्यूज हैं, एक तो कांस्टेंट है C1 एंड C2। तो ये जो C1 एंड C2 कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है, ये आपको कहाँ से देगा, तो क्या दे के रखेगा? दे आर नोन एज इनिशियल कंडीशंस। तो इनिशियल कंडीशंस दे के रखेगा, तो ही अपन C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। अदरवाइज C1 और C2 की वैल्यू कैलकुलेट नहीं की जा सकती, तो उनको अपन एज इट इज ही छोड़ देते हैं ऐसे ही। तो अभी देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, क्वेश्चन नंबर 8। सो क्वेश्चन इज, क्वेश्चन इज d2x, इसको भी डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व ही करना है। सो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 6 dx बाई dt प्लस 8x इक्वल टू 0। तो d2x अपॉन dt स्क्वायर प्लस 6 dx बाई dt प्लस 8x इक्वल टू 0। और आपको इनिशियल कंडीशंस गिवन है। तो इनिशियल कंडीशंस, तो इनिशियल कंडीशंस क्या होंगी? इनिशियल कंडीशंस क्वेश्चन में गिवन है, x ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। और एक और इनिशियल कंडीशन गिवन है कि जो dx बाई dt है, सो dx बाई dt वो एट t इक्वल टू 0 पे 0 है। तो यहाँ पे दो इनिशियल कंडीशन गिवन है। तो फर्स्ट इनिशियल कंडीशन तो क्या है? x ऑफ 0 इक्वल टू 1। और सेकंड इनिशियल कंडीशन क्या है? कि जो आप x निकाल लोगे उसको डिफरेंशिएट करोगे dx बाई dt एंड एट t इक्वल टू 0 आप पुट करोगे तो 0 आना चाहिए। तो अगर ये दो इनिशियल कंडीशन है, इसका मतलब इसके सॉल्यूशन में दो कांस्टेंट होंगे इंटीग्रेशन के, क्योंकि जितना आपको वेरिएबल्स कैलकुलेट करने होते हैं उतना नंबर ऑफ इक्वेशंस की रिक्वायरमेंट होती है। तो उसने दो कांस्टेंट होंगे जरूर इक्वेशन में, इसीलिए उसने दो इनिशियल कंडीशन दी है। फर्स्ट इनिशियल कंडीशन आपको दी है x ऑफ 0 इक्वल टू 1, और दूसरी इनिशियल कंडीशन आपको दी है dx बाई dt एट t इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। तो ये दो इनिशियल कंडीशन दी है, तो दोनों इनिशियल कंडीशन देने का मीनिंग है कि इसमें दो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएंगे। और ये हम वेरीफाई भी कर लेते हैं, देखो अभी पता चल जाएगा। तो अब इसमें देखो, ये हो जाएगा आपका, सबसे पहले इसमें ऑक्सिलरी सर इक्वेशन फॉर्म कर कांस्टेंट लो। आएंगे 4 and 2। एक मिनट, देखो आपने किया, नहीं 4 एंड 2 नहीं आएंगे, कांस्टेंट आएंगे 2 एंड -1। देखो, पहले अब चेक करते जाओ आप अपना मेथड। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन हम लिखेंगे, तो इसका ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या होगा? डी स्क्वायर प्लस 6d प्लस 8 इक्वल टू 0 होगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा? d प्लस 4 इंटू डी प्लस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे d की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 एंड d इक्वल टू -4। ये सही आ गए थे आपके ऑक्सिलरी इक्वेशन। यस सर। फिर उसके बाद सॉल्यूशन क्या होगा, क्योंकि रियल और डिफरेंट रूट है, तो उसका सॉल्यूशन कितना होता है? अब ये x और t में डिफरेंशियल इक्वेशन है, आएगा x इज इक्वल टू c1 e2 पावर -2t प्लस c2 e2 पावर -4t। ये हो जाएगा c2 e2 पावर -4t। सर टी टी क्या उधर वो ऊपर टी? ये देखो, ये यहाँ पे आपका देखो कि d2x बाई dt स्क्वायर है, तो इसलिए x इक्वल टू समथिंग आएगा। तो x इक्वल टू समथिंग आने का मतलब क्या है? x इक्वल टू c1 e2 पावर -1 रूट इंटू टी प्लस c2 e2 पावर -4 इंटू टी। बिकॉज आपका x और t में इक्वेशन बनेगा, क्योंकि x और t में डिफरेंशियल इक्वेशन है। तो इसलिए x इन फंक्शन ऑफ t,
और क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी पिछले पेज पे आपने लिखा भी होगा कि अगर रूट्स आपके रियल होते हैं और डिफरेंट होते हैं तो दोनों जो रूट्स हैं वो रियल है -2 और -4 और डिफरेंट है, तो उस केस में क्या होगा C1 e टू पावर -2t प्लस C2 e टू पावर -4t। तो यहाँ पे x की वैल्यू आ जाएगी C1 e टू पावर -2t प्लस C2 e टू पावर -4t। तो अभी देखो, तो यहाँ पे आपका यहाँ तक क्लियर हुआ। हाँ सर। अभी इसने क्या गिवन किया हुआ है, इसने गिवन है x ऑफ 0 इक्वल टू 1, मतलब t इक्वल टू 0 पे x ऑफ 0 की वैल्यू 1 है। तो इधर t इक्वल टू 0 पुट करो इस इक्वेशन में। अगर आप इस इक्वेशन में सब जगह t इक्वल टू 0, यहाँ पे t इक्वल टू 0 पुट करना है, इधर t इक्वल टू 0 पुट करना है, तो कितना आएगा। और x की वैल्यू कितनी है 1 है, तो यहाँ पे 1 इज इक्वल टू C1 e टू पावर -2 इंटू 0, तो e टू पावर 0 ही हो गया इफेक्टिवली, तो वो C1 ही बचा। फिर आएगा C2 e टू पावर -4 इंटू 0, तो वो भी आपका 4 इंटू 0 भी 0 और e टू पावर 0 फिर अगेन आपका वो भी 1 हो जाएगा। तो C1 प्लस C2 की वैल्यू 1, तो यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब फिर सेकंड कंडीशन उन्होंने क्या दिया है, जो आप x को डिफरेंशिएट करोगे t के रेस्पेक्ट में, तो आपके पास x क्या है, ये आया है x, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, तो यहाँ पे आएगा dx अपॉन dt। तो डिफरेंशिएशन कितना आएगा, पहले आपको इसको डिफरेंशिएट करना होगा C1 e टू पावर -2t, तो इसको डिफरेंशिएट करोगे तो C1 तो कांस्टेंट डिफरेंशिएशन में एज इट इज रहता है, और e टू पावर -2t, तो e टू पावर x का डिफरेंशिएशन कितना होता है, e टू पावर x ही होता है, तो इट विल बी e टू पावर -2t। और फिर वापस से अपन -2t का भी डिफरेंशिएशन करेंगे, तो -2t का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -2, इसके बाद प्लस, तो यहाँ पे -2 आ चुका है, प्लस प्लस ये एज इट इज प्लस, फिर इसके बाद C2 e टू पावर -4t, इस वाली टर्म का डिफरेंशिएशन करेंगे, तो अभी क्या आएगा C2 और e टू पावर x का डिफरेंशिएशन फिर से C2 e टू पावर -4t, और -4t का फिर से डिफरेंशिएशन -4। ये क्लियर हुआ। हाँ जी बेटा, ये क्लियर हुआ। यस सर। तो अभी इसको जब सॉल्व करेंगे तो इट विल बी dx बाई dt इज इक्वल टू कितना आएगा -2C1 e टू पावर -2t एंड -4C2 e टू पावर -4t, बस ये आ गया। अभी इसको इसने बोला हुआ है कि ये इक्वेशन में t इक्वल टू 0 पुट करो, तो जो dx बाई dt है उसका पूरे का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे अभी यहाँ तक लिखो पहले, फिर इसको आगे करते हैं। या खुद से सॉल्व करके मुझे बताओ ये जो इक्वेशन है कितना आएगा। एक इक्वेशन तो आ चुका है अपना C1 प्लस C2 इक्वल टू 1। अभी क्योंकि दो वेरिएबल है तो एक इक्वेशन और प्रोड्यूस करना है। सर C1 इज इक्वल टू -2 C2। 7 इज इक्वल टू C1 C1 इज इक्वल टू, -2 C2। हाँ तो C1 इज इक्वल टू -2C2, तो यहाँ पे हाँ ठीक है, तो उससे आपका बिल्कुल सही आ रहा है सेकंड इक्वेशन, इसको सॉल्व करके C1 इज इक्वल टू -2C2, ये इक्वेशन नंबर 2 आ रहा है। फिर ये C1 इक्वल टू -2C2, फिर ये C1 इक्वल टू -2C2 है, वो आप यहाँ पे रख दो, तो उससे C1 और C2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, C1 की वैल्यू तो आ जाएगी 2, और C2 की वैल्यू -1 कितनी है, हाँ -1। -1। तो अभी ये C1 आ गया, ये C2 आ गया। अब यहाँ पे C1 की जगह +2 पुट कर दो, और C2 की जगह -1 पुट कर दो, तो C1 की जगह +2, तो 2 e की पावर -2t, और C2 की जगह कितना है -1, माइनस ई टू पावर -4t, तो ये आपका आ जाएगा 2 e टू पावर -2t माइनस ई टू पावर -4t, ये इसका आंसर आ जाएगा x इज इक्वल टू। तो अभी आपको सॉल्यूशन क्लियर हुआ। हाँ सर। चलो इसको लिख लो अगर कोई रिक्वायरमेंट है तो। डन सर। चलो गुड।
चलो अभी एक क्वेश्चन और लेते हैं। सो इसमें क्या है, ये एक्चुअली आपका पूरा हो जाएगा ना, तो फिर मैं इसके नोट्स भी सेंड कर दूंगा और अगले चैप्टर के भी कर दूंगा, तो इसलिए इसको अपन कर लेते हैं। देखो अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। तो अब आपके पास और किस टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, एक क्वेश्चन और अपन कंसिडर करते हैं, बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। d2y अपॉन dx² plus y is equal to 0. So make the auxiliary equation for this equation. It is d square plus 1 into y. So that is equal to 0. तो इसमें कोई इनिशियल कंडीशन कुछ गिवन नहीं है, सिर्फ तुम्हें इसको सॉल्व करना था। तो यहाँ पे ऑक्सिलरी इक्वेशन कितना हो जाएगा, ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा d² plus 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा d इज इक्वल टू 0 प्लस माइनस आयोटा। तो यहाँ पे इसका d की वैल्यू प्लस माइनस आयोटा आ जाएगी। ठीक है, अब इसमें इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ पे इसका जनरल सॉल्यूशन मतलब जो ऑक्सिलरी इक्वेशन में अगर देखो, अब ये आपके रूट्स आ रहे हैं, तो ये रियल रूट्स तो है नहीं, ये तो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं। तो अगर आपके इस इसमें अगर इसको मैं एक मिनट इरेज करके आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ, पहले बता देता हूँ। तो अगर आपके जो रूट्स हैं वो सपोज करो d इज इक्वल टू एल्फा प्लस माइनस आयोटा बीटा, आपके अगर जो रूट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट हैं, एक अल्फा है प्लस माइनस आयोटा बीटा, मतलब अल्फा इसका रियल पार्ट है और बीटा इसका इमेजिनरी पार्ट है। इस फॉर्म में अगर आपके रूट्स आ रहे हैं, क्योंकि ये अल्टीमेटली किसके फॉर्म में है, 0 प्लस माइनस आयोटा का फॉर्म है, तो इसका मतलब आपका जो ऑक्सिलरी इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, तो सॉल्यूशन विल बी y इज इक्वल टू ई टू पावर अल्फा एक्स। क्योंकि देखो आपका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल इक्वेशन है ऊपर, तो हमारा जो आंसर होगा वो भी x के रेस्पेक्ट में ही होगा। तो यहाँ पे आपका y इक्वल टू ई टू पावर अल्फा एक्स इंटू ब्रैकेट में क्या आएगा, ब्रैकेट में आएगा आपका c1 cos ऑफ इमेजिनरी पार्ट इज बीटा, तो इट इज cos ऑफ बीटा एक्स। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि आपको अलग अलग सब कंडीशंस एक बार ध्यान रखनी पड़ेगी। तो उसके लिए मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ, बट ये बुक मंगा के और उसमें सारे केस आपको एक ही जगह पे टेबल बना के गिवन है बुक के अंदर। तो इट इज c1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस इट इज c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। सो अगेन दिस इज द सॉल्यूशन। फर्स्ट वाले में आपका cos आएगा और सेकंड वाले में आपका साइन आएगा, तो ये हो जाएगा आपका c1 cos ऑफ बीटा एक्स प्लस c2 साइन ऑफ बीटा एक्स। तो इट इज y इज इक्वल टू ई टू पावर अल्फा एक्स। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, y की वैल्यू कितना होगा, y, तो y इज इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा y इज इक्वल टू ई टू पावर अल्फा एक्स। तो यहाँ पे अब देखो अल्फा का वैल्यू रियल पार्ट तो इसका 0 है, तो ई टू पावर 0 इंटू एक्स मल्टीप्लाइड बाय c1 cos ऑफ बीटा एक्स। तो बीटा इमेजिनरी पार्ट होता है आयोटा का कोफिशिएंट, तो इसलिए बीटा की वैल्यू है 1, क्योंकि आयोटा का कोफिशिएंट है 1। क्योंकि जो आपका आयोटा का कोफिशिएंट होता है बीटा, तो वो आपका यहाँ पे 1 है, तो इसलिए बीटा की वैल्यू 1 प्लस c2 इंटू साइन ऑफ बीटा इंटू एक्स। तो बीटा की वैल्यू फिर से 1 और 1 डॉट एक्स फिर से इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे आपका सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू c1, एक मिनट c1 अच्छे से लिख देता हूँ, c1 cos ऑफ बीटा एक्स, तो बीटा एक्स मतलब सिंपल cos एक्स प्लस c2 साइन ऑफ अगेन बीटा एक्स, तो सिंपल एक्स। ये इसका आंसर आ जाएगा। तो इसको नोट कर लो कि अगर आपके अल्फा प्लस माइनस बीटा अगर ये रूट्स होते हैं, तो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन। तो आपको सॉल्यूशन कैसे आ रहे हैं उनकी नेचर के बेसिस पे आपको ये काम करना पड़ेगा, आपको सब कंडीशंस को एक बार रिव्यू करना पड़ेगा। तो ये आप किसी भी बुक से रिव्यू कर सकते हो कि जब आपके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट रूट्स आते हैं, तो आपका ये जो मैंने लिखा है y इज इक्वल टू ई टू पावर अल्फा एक्स, ये वाला इक्वेशन होता है आपका। तो ये बेटा समझ आ रहा है। सर
नोट कर लेना। किया सर, हो गया। हो गया, चलो अभी एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। नेक्स्ट, अभी इसमें है एक थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन। हाँ, तो देखो इसमें है आपका सॉल्व करना है डिफरेंशियल इक्वेशन को, एंड डिफरेंशियल इक्वेशन इज d2y by dx स्क्वायर प्लस 4 dy by dx प्लस 3y इज इक्वल टू 3 e टू पावर 2x। तो यहाँ पे आपका ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो इसमें एक चीज ऑब्जर्व करो कि इधर यहाँ पे जीरो नहीं है, तो अभी भी इसका जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो हम इसी तरीके से बनाएंगे। तो इसका कैसे हो जाएगा ऑक्सिलरी इक्वेशन? ऑक्सिलरी इक्वेशन हो जाएगा इसका डी स्क्वायर, अभी देखो मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 एंड मल्टीप्लाइड बाय y इज इक्वल टू 3 e टू पावर 2x। ये है, तो डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू वाई इज इक्वल टू 3 e टू पावर 2x। तो हमने वही किया। तो अब इसमें अब इसके दो सॉल्यूशन होंगे, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू जीरो नहीं है। तो क्या होगा, अगर इक्वल टू जीरो नहीं है तो इस केस में आपका ये क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा आपका, पहले तो ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाओ। तो ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या आएगा, डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3, ये ऑक्सिलरी इक्वेशन आएगा इक्वल टू जीरो कर दो। तो हमने पहले ऑक्सिलरी इक्वेशन को जीरो किया, इससे ऑक्सिलरी इक्वेशन के रूट्स आएंगे डी स्क्वायर एंड ये कितना हो जाएगा प्लस डी, और 4d आना चाहिए ना, हमें इसको इस तरीके से ब्रेक करना है। तो 3 ये 3 1 3,1 में हो जाएगा, हाँ ठीक है। -3 तो -1। इस -3 -1, हाँ तो यहाँ पे ये d का वैल्यू कितना आ जाएगा -1 एंड -3। तो यहाँ पे रियल और अनइक्वल रूट है, तो उससे जो सॉल्यूशन निकलेगा उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन क्या होगा इसका, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा इसका c1 e टू पावर -1x मीन्स सिर्फ x, क्योंकि रियल और अनइक्वल रूट वाली कंडीशन लगाएंगे, प्लस c2 e टू पावर -3x। तो यहाँ पे ये हो जाएगा c2 e टू पावर -3x। तो ये तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 लिख लो। फिर क्योंकि इसमें इक्वल टू जीरो यहाँ पे नहीं था, तो इसमें कोई वैल्यू दी हुई थी फंक्शन की, तो इसका मतलब इसमें एक और चीज निकलती है, उसको बोलते हैं पर्टिकुलर इंटीग्रल। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या होगा इसका, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू, यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन, तो ये जो आपने लिखा है यहाँ पे फंक्शन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इक्वल टू इंटू वाई इक्वल टू 3 e टू पावर 2x, तो ये हो जाएगा 3 e टू पावर 2x अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। तो यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 नीचे आ जाएगा, वो पर्टिकुलर इंटीग्रल होता है, और ये एज इट इज ऊपर वाला फंक्शन रहेगा। तो कैसे लिखेंगे, तो जाएगा 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3 इंटू 3 e टू पावर 2x। तो इसमें आपको ये एडिशनली एक और सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो जो इक्वल टू जीरो वाली जो डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है उसमें सिर्फ ऑक्सिलरी इक्वेशन कैलकुलेट करो, और जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन होता है ये वाला, सिर्फ यही आंसर होता है। बट अगर आपका नॉन जीरो में कुछ ना कुछ फंक्शन दिया हो, तो उस केस में कैसे करते हैं, उस केस में अपने को फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन के साथ साथ पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका ये आया 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3। और इसमें इसको कैसे लिखेंगे, अगर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल इस टाइप का आ रहा है, कैसा, अगर आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल यहाँ पे आपका 1 अपॉन सम फंक्शन ऑफ डी, तो देखो डिनोमिनेटर में फंक्शन ऑफ डी, डी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ रहा है डी स्क्वायर प्लस 4d प्लस 3, तो 1 अपॉन एफ डी इंटू e टू पावर ax, तो दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ ऑफ ए, क्योंकि यहाँ पे ये x इक्वल टू ए देखो,
तो ये x इक्वल टू a, तो मतलब यहाँ पे d की जगह फंक्शन में जहां जहां d है वहां a पुट कर दो, मल्टीप्लाइड बाय e टू पावर ax। तो इसी के बेसिस पे ये जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है इसको कैसे सॉल्व करके लिखेंगे, तो इसको अपना लिखने का मेथड होगा पर्टिकुलर इंटीग्रल इज इक्वल टू 1 अपॉन और f ऑफ a। तो यहाँ पे देखो e टू पावर 2x है, तो ये जो 2 मतलब a की वैल्यू 2, तो इस वाले जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें d की जगह सब जगह 2 रख दो, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 e टू पावर और 2x, क्योंकि एज इट इज है। तो अब आपका आ गया 3 e टू पावर 2x, तो यहाँ पे पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या हो जाएगा, पर्टिकुलर इंटीग्रल हो जाएगा आपका 3 e टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, और 4 टू से कितना होता है 8, 8 प्लस 4 12 प्लस 3 15, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल हो गया 3 e टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 15, ये इसका आंसर हो गया। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा आपका। तो अब जो दोनों सॉल्यूशन आए, एक तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आया, देखो ये पूरा आंसर नहीं होगा, ये सिर्फ पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा, ये सेकंड। तो पहले इधर तक लिखो, हो गया सर। हो गया। तो आपका जो नॉट इक्वल टू 0 वाले में जो आपका फाइनल सॉल्यूशन होगा वो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और वो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल है दोनों को ऐड करके लिखेंगे। तो दोनों को ऐड करके लिखना है अपने को, तो यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा इसको ऊपर से इरेज कर देता हूँ और यहाँ लिखते हैं। तो इसका जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा, सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सो कंप्लीट सॉल्यूशन कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी, तो कंप्लीट सॉल्यूशन कौन सा होगा, अब देखो इसमें तो y इज इक्वल टू, क्योंकि ये y में डिफरेंशिएशन y के रेस्पेक्ट मतलब y फंक्शन था, तो इसलिए y इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल। तो दोनों जो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और जो पर्टिकुलर इंटीग्रल होते हैं दोनों को ऐड करके लिख देते हैं। यहाँ पे आपका इसको मैं थोड़ा सा, हाँ, तो ये कैसे लिखेंगे हम, तो इसको लिख सकते हैं y इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू ये पूरा कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है c1 e टू पावर माइनस एक्स प्लस c2 e टू पावर माइनस 3x प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल देखो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल आपका ये हो जाएगा 3 e टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 15, तो ये हो जाएगा 3 e टू पावर 2x डिवाइडेड बाय 15। तो ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन वाला सेक्शन है और ये पर्टिकुलर इंटीग्रल वाला फंक्शन सेक्शन है, और ये इसका फाइनल आंसर है। आपसे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी इंडिविजुअली पूछ सकता है, पर्टिकुलर इंटीग्रल भी इंडिविजुअली पूछ सकता है, और आपसे कॉम्प्लीमेंट्री पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन भी पूछ सकता है। सो कंप्लीट सॉल्यूशन विल बी कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल, जो भी आता है एज इट इज उनको ऐड करके लिख देते हैं। तो समझ आया आपको ये? हाँ सर, इसको लिख लो। हो गया सर, लिख। हाँ, अब देखो अपना क्लास अच्छे से नहीं हो पाई, उसके बाद भी मैंने तुम्हें पूरे एक चैप्टर का आइडिया दिया, तो इस अच्छा रहा कि अपना टाइम वेस्ट नहीं हुआ। अगर आज टाइम वेस्ट हो जाता तो बहुत सारा मेरे को कट कराना पड़ता। अब देखो मैं तुम्हें ये बता देता हूँ कि कल अपना क्लास होता है, उसके मैं तुम्हें नोट्स पहले सेंड कर देता हूँ। कल मैं पढ़ाऊंगा न्यूमेरिकल मेथड्स। सर सुनो ना, हाँ, आप व्हाट्सएप करो ना, आप में वो वो पीडीएफ। आपके नंबर पे हाँ, वो मेरे पास अभी पेन नहीं है, तो तुम मुझे अपना मेल आईडी मेरे को मेल कर दो, उस पर अपना नंबर लिख के भेज दो। चैट ठीक है, बॉक्स में डालता हूँ ना। अभी इसके चैट बॉक्स पे, हाँ तो वो सेफ रहेगा क्या, सेव रहेगा, वो तो हट जाएगा ना मीटिंग के बाद। तुम आराम से मेरे को मेल में अपना मोबाइल नंबर लिख के दे देना, मैं व्हाट्सअप कर दूंगा, और नहीं से मेल कर दूंगा, तो मेल से तुम डाउनलोड कर लेना ना। मेरे पास एक्चुअली पेन नहीं है अभी। वो है ना, मिसिंग हो जाती है पीडीएफ वो ड्राइव में। मेल मेल में ठीक है, तो मैं हाँ तुम्हें हाँ। व्हाट्सअप कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। तुम मुझे मेल पे अपना नंबर, व्हाट्सअप वाला नंबर भेज दो मेल आईडी ओके पे। सर, ओके, हाँ। हाँ, और अभी तो रुको, पहले पहले मैं कल का तुम्हें चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ ताकि तुम पढ़ लो, अभी है अपने पास 10 मिनट्स। देखो इसमें क्या है, नेक्स्ट वाला जो चैप्टर है वो हम पढ़ेंगे न्यूमेरिकल मेथड्स। तो न्यूमेरिकल मेथड से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में तुम्हें प्रोबेबिलिटी का भी दे दूंगा। तो प्रोबेबिलिटी में देखो सबसे पहले अपने को क्या पढ़ना है,
एक तो प्रोबेबिलिटी में जो इजी क्वेश्चंस हैं, इजी क्वेश्चंस मतलब जैसे आपको सबसे पहले आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटीज में बेस थ्योरम, तो वो आपको बेस थ्योरम के क्वेश्चन बहुत इजी तरीके से मैं करवाऊंगा। तो 1 मिनट रुको, मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये बेटा मैं अभी बता दूंगा तो तुम्हें बहुत अच्छा रहेगा कल के लिए ना। अभी अपने पास है, देखो इसमें है जो सबसे बेसिक क्वेश्चंस हैं। हाँ, जैसे इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चैप्टर है, इसके भी मैं तुम्हें भी नोट्स भेज दूंगा। प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो हाँ, तो STATISTICS, यस, प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स। सो इस चैप्टर में देखो, इसमें जैसे क्वेश्चंस आपको होंगे एक तो बेसिक प्रोबेबिलिटीज के। सो बेसिक क्वेश्चंस के लिए आपको कोई भी बुक से या कोई भी PDF नेट से आप पढ़ सकते हो। तो बेसिक क्वेश्चंस आपको कैसे, जैसे एक तो आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट का जो मास्टर फॉर्मूला है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट? प्रोबेबिलिटी नंबर ऑफ नंबर ऑफ favorable events upon total number of events. So number of favorable events upon total number of events. तो आपको जितने भी फेवरेबल इवेंट्स हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स, तो ये चीज आपको रखना है ध्यान में। तो अभी इसमें देखो, इसमें आपको जो बेसिक क्वेश्चंस हैं वो किस तरीके से आएंगे। हाँ, तो लाइक क्वेश्चन नंबर 1, a fair dice is rolled twice. A fair dice is rolled twice. The probability that an odd number will follow an even number is. So a fair dice is rolled twice. The probability that an odd number will follow an even number is. यहाँ पे एक डाइस है, उसको हमने 2 बार रोल किया है, और डाइस में प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल फॉलो एन इवन नंबर, तो मतलब एक बार फर्स्ट टाइम पे ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी, और उसके बाद फिर वापस से डाइस को उठाया और फिर से रोल किया, तो एक बार फिर इवन नंबर आने की प्रोबेबिलिटी। तो दोनों सक्सेशन में आने की, कि आपका इवन नंबर के बाद में एक ऑड नंबर आए। द प्रोबेबिलिटी दैट एन ऑड नंबर विल फॉलो एन इवन नंबर। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ, अभी हमने एक डाइस को रोल किया, तो रोल करने के बाद अगर हम डाइस को थ्रो करेंगे तो उसमें अपने पास नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट कितने, नंबर ऑफ इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स कितने होते हैं डाइस में? 3 होते हैं, 1, 3 एंड 5। तो नंबर ऑफ 3 फेवरेबल इवेंट अपॉन 3 टोटल नंबर ऑफ इवेंट, सो इट विल बी इक्वल टू 1/2। एंड उसके बाद तो पहली बार तो वैसे तो हमें फर्स्ट टाइम में तो ऑड नंबर विल फॉलो एन इवन नंबर, फर्स्ट टाइम में तो इवन नंबर आएगा, तो बट फिर भी वो भी एक इंडिपेंडेंट इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इवन नंबर, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट इज 3 एंड टोटल नंबर ऑफ इवेंट इज 6, सो इट विल बी 1/2। तो यहाँ पे आपका इवन नंबर आएगा और उसके बाद फिर ऑड नंबर आने की फिर से 1/2।
तो सक्सेशन में आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो यहाँ पे नाउ सिंस both events are in succession, so यहाँ पे दोनों events आपके succession में, since both events are in succession, so what is the overall probability that will be equal to? Overall probability is equal to product of probabilities of both cases, so probability of getting even number into probability of getting odd number. तो यहाँ पे आपका ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगा, इवन नंबर का प्रोबेबिलिटी 1/2 है और ऑड नंबर का प्रोबेबिलिटी भी 1/2, क्योंकि दोनों इवेंट एक दूसरे पे इंडिपेंडेंट है, तो इसलिए हमने दोनों की इंडिपेंडेंट प्रोबेबिलिटीज कैलकुलेट की है, एंड दैट विल बी इज इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे आपका ये इसका आंसर आ जाएगा। तो एक क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ? सर तो इसको नोट डाउन कर लो। झालं सर, हो गया सर। ठीक है, बस एक लास्ट और छोटा सा क्वेश्चन है। लास्ट इसमें है कि क्वेश्चन नंबर 2। अभी देखो, we have two containers, and in container 1 and we have container 2, so it is container 1 and it is container 2। अच्छा, कंटेनर 1 में आपका 4 रेड बॉल्स हैं और कंटेनर 2 में आपका 3 ग्रीन बॉल्स हैं। कंटेनर 2 में 3 ग्रीन बॉल्स हैं, ठीक है। तो 2 कंटेनर गिवन है। इसमें क्वेश्चन आस्क किया है कि तो फर्स्ट कंटेनर में नहीं, फर्स्ट कंटेनर में 4 रेड हैं और ग्रीन भी, ग्रीन उसी के अंदर है 3। ये बना लेते हैं अपन, 2 मिनट लगेगा। इसी के अंदर है 3 ग्रीन्स कंटेनर 1 के अंदर, और कंटेनर 2 के अंदर कितना है? 3 ब्लू बॉल्स। तो कंटेनर 2 के अंदर है 3 ब्लू बॉल्स, तो यहाँ पे 1 2 एंड 3, ये आपके 3 ब्लू बॉल्स हैं एंड 4 ग्रीन बॉल्स हैं। तो अभी इसमें 4 ग्रीन्स बना देते हैं अपन, 1 2 3 एंड 4। इस तरीके से दोनों कंटेनर में बॉल्स का अरेंजमेंट। अच्छा, अब इसमें देखो क्वेश्चन क्या है, बस 5 मिनट। तो इसमें क्वेश्चन है, वन बॉल इज ड्रॉन at random from each container. One ball is drawn at random from each container. The probability that one of the balls is red and the other is
blue will be and other is blue will be. तो आपको इसका क्वेश्चन कैलकुलेट करना है कि we have two containers. Container 1 contain 4 red balls and 3 green balls, while container 2 contains other container contain 3 blue balls and 4 green balls. One ball is drawn at random from each container. The probability that one of ball is red and the other is blue will be. तो probability कैसे कैलकुलेट करेंगे कि आपके दो बॉल रैंडमली ड्रॉ की गई हैं, तो इसमें क्या होगा कि फर्स्ट बॉल रेड है और सेकंड ब्लू है और रैंडमली ड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या होगा, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन बता देता हूँ आपको. सो प्रोबेबिलिटी of drawing first ball is red and second is blue, that is equal to, तो फर्स्ट बॉल आपका रेड, तो फर्स्ट रेड बॉल आपकी करने की, तो उसमें देखो रेड और सेकंड ब्लू है, तो रेड बॉल तो फर्स्ट ही कंटेनर में है, तो इसलिए हमको उसको फर्स्ट कंटेनर से ही निकालने की प्रोबेबिलिटी चेक करनी पड़ेगी रेड कलर के लिए. तो प्रोबेबिलिटी कैसे चेक करते हैं, अगर रेड है फर्स्ट तो नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट, तो फर्स्ट कंटेनर में कितनी रेड बॉल्स हैं 4, और फर्स्ट कंटेनर में टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 3. उसके बाद अब सक्सेशन में इवेंट है, तो इसका मतलब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी मल्टीप्लाई होगी. तो अगर इवेंट सक्सेशन में होते हैं कि फर्स्ट कंटेनर से हमने बॉल विड्रॉ करी, फिर सेकंड से करी, फिर थर्ड से, ऐसे आए, तो आपको रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज को मल्टीप्लाई करना है. तो यहाँ पे आपका सेकंड आएगा कि नेक्स्ट वाले कंटेनर से ब्लू बॉल, तो नेक्स्ट वाला कंटेनर होगा 3, उसमें ब्लू बॉल है और टोटल नंबर ऑफ बॉल्स कितनी है 7 है, सो दैट विल बी इक्वल टू 12/49. सो इट इज 12/49. तो यहाँ पे 12/49 इसका आंसर आ जाएगा. तो इस तरीके से इसको अपन सॉल्व करेंगे. तो ये क्लियर हुआ? हाँ सर. अच्छा, और अभी तुमने फिर मेरे को मेल कर देना अपना नंबर, मैं उस पर व्हाट्सअप कर दूंगा. अभी तो नहीं, अभी मेरी और क्लास होगी, तो ओके फ्री सर. होके मैं करता हूँ, नाइट में करता हूँ या कल करता हूँ, है ना? ओके सर. ओके सर. ओके चलो ठीक है, लॉग आउट कर लो. सर इतना लिख रहा हूँ मैं, फिर करता हूँ. हाँ, इसको आराम से लिख लो आप, टेक योर टाइम. ओके सर, हो गया. चलो ठीक है, अभी लॉग आउट कर लो, कल मिलते हैं. हाँ सर. ओके.